the scripture says the kingdom of God is righteousness. और इसी कारण से वचन कहता है कि परमेश्वर का राज्य धार्मिकता है, It is first righteousness, और पहले वो धार्मिकता and है, then it is peace. और तब वो शांति है, Then it is joy in the Holy Ghost. और तब वो आनंद पवित्र आत्मा But the में है। kingdom is not first peace. और लेकिन वो राज्य पहले The शांति kingdom नहीं of है, God is not first joy in the Holy Ghost, और परमेश्वर का राज्य जो है वो पवित्र आत्मा का आनंद पहले नहीं है, but it is first righteousness. और लेकिन पहले धार्मिकता है। And the peace that would flow into our hearts will be out of the righteous standing in which we stand by the working of the cross. और वो शांति जो हमारे हृदयों में आएगी वो उसी धार्मिकता के कारण आएगी जो मसीह यीशु की उस क्रूस के कारण होगा। So, saints, today there is a kind of false peace and joy that people talk about. और आज जो लोग जिस आनंद और शांति की बात करते हैं वो एक झूठी बात है। But I want to say to all of us, लेकिन मैं हम सबों को कहना चाहता हूँ, you know, we are called to suffer for his name's sake. और हम बुलाए गए हैं कि उसकी नाम की खातिर हम दुखों को सहन करें। That's the truth of the gospel of Jesus Christ. और वो सच्चाई है यीशु मसीह के And सुसमाचार। may we realize, और इस बात को हम जानते and the हैं। Hebrew saints, और इब्रानियों के संत they लोग suffered थे, much. उन्होंने बहुत दुखों को सहन किया। and to these saints, और इन संतों में the apostle Paul or the writer says, cast not away your confidence. और पौलुस या लेखक कहता है कि तुम अपने आश्वासन को खो मत देना। Yes, which has a great recompense of reward. और जिसका के एक बहुत बड़ा पुरस्कार या अजर है। For ye have need of patience. और क्योंकि तुम्हें धीरज की आवश्यकता After है, you have done the will of God, और जब तुमने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, you might receive the promise. और तुम उन वाचाओं को प्राप्त करो। Saints, परमेश्वर as we heard yesterday, और जैसे कल हमने सुना, it's very difficult in the natural. और प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही कठिन है। You are already going through suffering. और पहले ही आप दुख और You are going through already difficulties, और कठिनाइयों में से गुजर रहे हैं, several battles और बहुत से युद्ध लड़ रहे हैं, because of your commitment to the Lord. क्योंकि आपका समर्पण प्रभु के प्रति है। And yet again, और फिर भी here comes the word of the Lord. और यहाँ परमेश्वर का वचन आता है, It's not a word of comfort in the natural, और ये प्राकृतिक रूप से कोई आराम का वचन नहीं, but the word is a corrective word, और लेकिन ये एक सुधार का वचन है। saying you need patience in और your ये life. कहते हुए कि तुम्हें अपने जीवन में धीरज की आवश्यकता We है। heard yesterday one thing very clearly. और एक चीज हमने बड़ी स्पष्टता से सुना, Patience, godly patience is willingness to wait to God's timing or to wait for God's timing. और परमेश्वर का धैर्य जो है वो ये है कि हम परमेश्वर के उस समय के लिए इंतजार करें, Wait for God's timing. और उसके समय का इंतजार करें और इच्छुक हो। And that's very, very important. और वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। Now, we know in our own lives और हम अपने जीवनों में जानते हैं how it is. ये कैसा है। Godly patience or patience is nothing else but waiting for God and His timing. धैर्य या धीरज या परमेश्वर का धीरज जो है वो कुछ नहीं सिवाय उसके समय का इंतजार करना। I'm just burdened in the spirit to share a little more in that area. और उस क्षेत्र के अंदर आत्मा का एक बोझ मुझ पर है कि थोड़ा और And I want to be obedient here. और यहाँ पर मैं आज्ञाकारी रहना चाहता हूँ। And it's not that great revelations I'm going to share with us. और ऐसा नहीं कि बहुत बड़े प्रकाशनों को मैं बतला रहा हूँ हमारे But साथ। I'm sure if you receive this word, और लेकिन मेरा विश्वास है कि यदि आप इस वचन को कहें, you are going to be an overcomer. और आप एक विजयी कहलाएंगे, You will be victorious. और आप विजय कहलाएंगे, You will have a strong relationship with the Lord. और प्रभु के साथ आपका रिश्ता और भी मजबूत हो You will जाएगा, be brought into a place of closeness with the Lord. और प्रभु के एक समीपता में आप लाए जाएंगे। And you will be delivered from many heartburns in your life. और आपके जीवन के अंदर जो बहुत से संकट हृदय के हैं उससे आप छुटकारा पाएंगे। You know, and the Hebrew writer says you need patience. और इब्रानियों का लेखक कहता है कि तुम्हें धीरज की आवश्यकता You need to है, wait for God and His time
in your life. और तुम्हें चाहिए कि अपने जीवन में परमेश्वर का इंतजार करें और उसके समय का। Just a little while और कुछ सन to see the example of Abraham in the Old Testament. पुराने नियम में हम अब्राहम का उदाहरण देखते हैं। I'm not getting into many details, और बहुत से ब्यौरों में मैं नहीं जा रहा, but when we consider this great man, और लेकिन जब इस महान व्यक्ति को हम देखते हैं, in the Old Testament, और पुराने नियम के अंदर a man of great faith, और एक बहुत बड़े विश्वास का व्यक्ति, and we read all about him even in the New Covenant repeatedly. और नई वाचा के अंदर भी बार बार हम देखते हैं कि उसको दोहराया गया है। Considering this man, और इस व्यक्ति के विषय में सोचते हैं, when we consider his circumstances, और जब उसके वातावरणों को हम देखते हैं, God's call upon his life, और परमेश्वर की बुलाहट जो उसके जीवन पर and the promise the Lord brought upon his life, और वो वाचा जो परमेश्वर ने उसके जीवन पर लाया, the age factor in his life, और वो उसके आयु का तत्व उसके जीवन में, and we know the struggles that he went through even in his life, और हम जानते हैं कि उसके जीवन में किन संघर्षों में से वो गुजरा, and it was a real matter of faith as far as Abraham was concerned. और जहां तक अब्राहम का संबंध था वो एक विश्वास की बात थी। God comes into his life, परमेश्वर उसके जीवन में आता है, and he makes some tremendous promises to Abraham. और परमेश्वर अब्राहम से कुछ अद्भुत वाचाएं बांधता है। The Lord said, "These shall be the things that I will do in your life." और परमेश्वर कहता है कि ये चीजें मैं तेरे जीवन में करूंगा। So the Lord came forth, और इसलिए परमेश्वर आ गया, he announced them, और ये घोषणा की, and he went away. और चला गया। And the Lord came again into his life, और परमेश्वर फिर उसके जीवन में आया, and he made promises to him, और उसके साथ वाचाएं बांधी, and then the Lord went back again. और तब परमेश्वर फिर वापस लौट गया। And all that Abraham was called to do was wait. और जिस चीज के लिए अब्राहम को बुलाया गया था वो इंतजार करना। The Lord has strange ways as far as our natural man is और concerned. जहां तक हमारा प्राकृतिक मनुष्य का संबंध है, But he deals with man like that. और लेकिन परमेश्वर मनुष्य के साथ इस प्रकार से कार्य करता है। He has his great wisdom behind it all. और उसकी बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता है इन सब चीजों के पीछे। And that's one thing, saints, God wants us to learn in our lives. और वो एक चीज है जो कि परमेश्वर चाहता है कि हम सीखे अपने जीवनों में। That's what the Lord wants his remnant church in these end times to learn. और यही परमेश्वर अपने शेष कलीसिया के लिए चाहता है कि वो सीखें। As we see the example of Abraham, और जब हम अब्राहम का उदाहरण देखते हैं, the Lord makes such great promises to him, और परमेश्वर ऐसे महान वायदे उससे करता है, and then he leaves the scene, और तब वो दृश्य से निकल जाता and है, Abraham is to now wait for और God's time. परमेश्वर के समय का इंतजार करना And we है। know what happened with Abraham, और आप जानते हैं कि अब्राहम के साथ क्या हुआ, how that impatience, और किस प्रकार से धीरज उसके अंदर आया, what it provoked him, और उसने उसे उकसाया, what it cost him to do. और उसको क्या मूल्य चुकाना पड़ा ये करने But के then लिए। the Lord came again into his life और तब परमेश्वर फिर उसके जीवन में and आया, spoke to him. और उससे बात की, And Abraham had to yet wait. और अब्राहम को अब भी इंतजार करना था। So these are the strange ways of God. और ये परमेश्वर के एक अजीब तरीके हैं, And he deals with us like that, saints of और God. इसी प्रकार से वो हमारे साथ भी व्यवहार And करता है। one thing behind his dealings is this. और उसके कार्यों के पीछे एक चीज है, He ये है, wants to bring his chosen men or chosen vessels into that oneness with himself. और वो चाहता है कि उसके चुने हुए पात्र जो है वो उसके साथ एक एकता में बन जाएं। This is the desire of God. और ये परमेश्वर की इच्छा है। It's not that God cannot do things for you and for me, और ऐसा नहीं कि परमेश्वर आपके और मेरे लिए चीजों को नहीं कर but सकता, God is wanting to bring these chosen ones, to come into a oneness with himself. लेकिन परमेश्वर की इच्छा यह है कि वो चुने हुए लोग उस परमेश्वर के साथ एकता में आ जाएं। We see that the long suffering of God
waited in the days of Noah. और हम देखते हैं कि नोहा के समय के अंदर परमेश्वर का धैर्य कितने लंबे अरसे तक चला, You know, because God was doing something. क्योंकि परमेश्वर कुछ कर रहा था God was doing something there. और परमेश्वर वहां पर कुछ कर रहा था। You know, so the long suffering of God waited. और लंबे धैर्य परमेश्वर का जो था वो इंतजार करना You था। know, God is a long suffering God. और परमेश्वर एक बहुत ही लंबे धैर्य को रखने वाला परमेश्वर है। So even the seeming delay in the life of Abraham, और वो विलंब जो अब्राहम के जीवन में देखा जा सकता है, it may not be so pleasant for Abraham. तो अब्राहम के लिए इतना सुविधाजनक नहीं था। It is not something that Abraham would have, really appreciated. और वो कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसकी प्रशंसा अब्राहम कर सकता था। But we see that that was the way of God with man. और लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर का तरीका मनुष्य के साथ ऐसा ही था। So God was working something in his heart. तो परमेश्वर उसके हृदय में कोई कार्य कर रहा था। As far as God is concerned, और जहां तक परमेश्वर का संबंध है, he could perfect his work at once. और वो अपने कार्य को एकदम से कर सकता था, He can do it. और वो ऐसा कर सकता है। But he doesn't do that with us और लेकिन वो इस प्रकार से हमारे साथ नहीं करता, because he loves us. क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, Because there is something that ought to be done in us. क्योंकि कुछ ऐसी चीज है जो पहले हमारे भीतर Now, होनी this चाहिए। is something, saints, we ought to learn in our lives. और ये कुछ ऐसी चीज है जो कि हमने अपने जीवनों में सीखना है। Left to God itself or himself, he would not in any way would like to keep us long in a place like that with a promise. और परमेश्वर उस वाचा के लिए हमें बहुत लंबे अरसे तक उस नहीं रोकेगा, He would perfect his purpose at once. और वो एकदम से अपने उस कार्य को पूरा करेगा। But then what is to be done in us will not be accomplished. और लेकिन जो हमारे भीतर कार्य होना है वो उसे प्राप्त नहीं हो Yes. सकेगा। Do you understand what I'm saying? क्या आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं? No. For example, उदाहरण के रूप में, now God brought Israel out of the land of Egypt. परमेश्वर ने इस्राएल को मिस्र देश से बाहर निकाला, And it was only just 11 days of travel. और ये केवल 11 दिनों की यात्रा थी, They could easily come. और वो आसानी से आ सकते थे, And they came to Kadesh Barnea, और कैदिश बर्निया तक वो and आए, they would have just crossed over. और वहां से वो पार कर सकते थे। Not only that, ना इतना there ही, was another shorter way also. और एक और छोटा रास्ता भी था, But the Lord brought them by the longer way. और लेकिन परमेश्वर ने उनको एक लंबे Even रास्ते that से journey लाया। was not 40 long years. और उस समय भी ये 40 लंबे वर्षों की God अवधि, never wanted them to be 40 long years. और परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि वो 40 लंबे वर्षों की अवधि Even में रहे। God brought them by the longer way. और जबकि परमेश्वर ने उनको एक लंबे रास्ते से लाया, It's because He wanted to bring a character in the life of God's people. क्योंकि वो चाहता था कि परमेश्वर के लोगों के जीवनों में एक चरित्र बन सके। Amen? It's not that God cannot do things perfect, His purpose at once. और ऐसा नहीं कि परमेश्वर चीजों को सिद्ध रूप से एकदम से नहीं कर सकता, He can do it. वो ऐसा कर सकता Left है, to Himself, He would do like that. और यदि उसके ऊपर बात हो तो वो एकदम से कर सकता What है। happens to us? लेकिन हमारे साथ क्या होता What है, happens to His people? उसके लोगों के साथ क्या होता है? We need to understand. हमें इस बात को समझना है। So, that which seemed to be the delays of God, और वो जो परमेश्वर के विलंब देखे जा सकते हैं, as we heard even yesterday, जैसे कल भी हमने सुना, is for our good. वो हमारी भलाई के लिए। Amen? God wants to bring in character.
परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर एक चरित्र उत्पन्न हो, God wants to change us. और परमेश्वर हमें बदलना चाहता है, He wants to qualify us. और वो हमें इस योग्य बनाना चाहता है। And that's what our eyes must be open to see even in these days. और इसी के लिए हमारी आंखें खुलनी चाहिए कि हम देखें इन दिनों में भी, And that during these times we may be brought into that place of oneness with God's purpose. और इस समय के दौरान हम एक ऐसे स्थान में ला जाए जहां परमेश्वर के साथ एकता में बंधे We may come into that oneness with His heart. और हम उसके हृदय की एकता के साथ आ जाएं। Saints of God, परमेश्वर के पवित्र लोगों, it is not that the Lord is just dealing with you and me like a schoolmaster. और ऐसा नहीं कि परमेश्वर आपके और मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे स्कूल का एक मास्टर होता है, That is not the way He is dealing with us. और उस प्रकार से वो हमारे साथ व्यवहार नहीं कर रहा। The Lord wants to develop something in us. परमेश्वर चाहता है कि हमारे भीतर कुछ उत्पन्न हो, He wants to transform us with Him. और वो चाहता है कि हमारे भीतरी भागों में एक रूपांतर हो। So there is something the Lord is looking for in us. और ऐसी कोई चीज है जिसकी परमेश्वर खोज कर रहा है हमारे भीतर। You know, in this spirit of waiting, in these times of the seeming delays, God is doing something and He is lifting us up from those low places where we are. और इस Hallelujah. प्रतीक्षा के अवसर पर परमेश्वर कुछ कार्य कर रहा है और हमें निचले स्तरों से जहां पर हमें ऊपर उठाना चाहता है। Amen. That's one thing we ought to know. और ये एक ऐसी चीज The Lord is doing a precious work. कि परमेश्वर एक बहुमूल्य कार्य कर रहा And है, many a time we are blinded in our और lives. बहुत सी बार अपने जीवनों में हम अंधे कर दिए We are not able to see. और हम देख नहीं पाते, And we are tempted to cast away our confidence. और हमारे परीक्षा होती है कि अपने विश्वास को हम खो दें। You know, the temptation is to cast away our confidence. और वो परीक्षा जो है वो हमारे उस आश्वासन को खो देने Saints, देती है। it's not enough that God has promised and He should do it in a jiffy. और इतना काफी नहीं कि परमेश्वर ने वाचा दी है और तत्काल ही वो उसको पूरा कर लेगा। Yes, we know, the Lord has made a promise. और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे साथ वाचा बांधी, The Lord made a promise to Abraham. और परमेश्वर ने अब्राहम से भी वाचा बांधी। But the thing is that why is He not coming forth and doing it just like that? और लेकिन प्रश्न यह है कि वो तत्काल ही आकर उस वाचा को पूरा क्यों नहीं करता। But God is wanting to do something in this man. और लेकिन इस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर कुछ करना चाहता Lift है, him up उसको ऊंचा उठाना further on to और आगे उठाना, and bring him closer to his own heart. और उसको अपने हृदय के समीप लाना। And don't you see that happening in the life of Abraham? और क्या आप नहीं देखते कि अब्राहम के जीवन में When he was brought to that place where he was called to offer his own son, there he touched the very heart of God, wherein God was willing to give his own son. और जबकि Hallelujah. वो एक ऐसी स्थिति में बुलाया गया कि जहां पर Yes. उसने अपने पुत्र का बलिदान की मांग की, और वो परमेश्वर के हृदय के और भी निकट आ गया और स्पर्श किया। You see the tremendous change and uplifting work in the life of Abraham. और हम देखते हैं कि अब्राहम के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होता है और वो ऊंचा उठाया जाता Even है। when he was told to send away Ishmael, he was very unhappy. और जबकि उससे कहा गया कि इश्माइल को तू भेज दे, तो वो बहुत ही नाखुश, When he knew that that is not the heir, that is not the promised one, और वो जानता था कि वो वारिस नहीं है और वाचा का दिया हुआ पुत्र नहीं he है। was very upset with that whole issue. और वो पूरे उस विषय के बारे में बहुत ही He was unhappy. और वो नाखुश था। Even it was told to send away Ishmael. और जब उसे कहा गया कि इश्माइल को भेज दे But वापस, the same man, और लेकिन वही व्यक्ति, when the Lord spoke to him, और जब परमेश्वर ने उससे बात की, offer your only son, और तेरा अकलौता पुत्र, the heir of all that I
have promised to you. और वो वारिस जो सब चीजों की मैंने तेरे से Offer him वाचा की unto है, me और उस as sacrifice. एक बलिदान के रूप में चढ़ा He दे। never shared with anybody. और उसने किसी से भी इसकी चर्चा नहीं की। Abraham would have easily disobeyed God. और अब्राहम परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता आसानी से No one would have